एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन से अनुरोध करूंगी कि वे गल्फ एरिया से संबंधित डेवलपमेंट्स पे जानकारी दें। नमस्कार। विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न हो रही स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। इस पूरे क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष कार्यरत है और हम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं ताकि उन्हें जानकारी और सहायता प्रदान की जा सके। क्षेत्र में स्थित हमारे मिशन और पोस्ट 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन सेवा प्रदान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के संगठनों और संघों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं और नागरिकों को सूचित रखने के लिए नियमित रूप से सलाह जारी कर रहे हैं। वे स्थानीय सरकारों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। हम फंसे हुए भारतीय और अल्पकालिक आगंतुकों को वीजा सहायता, आवश्यकता अनुसार संभार तंत्रीय सहायता और पारगमन व्यवस्था में सहायता सहित हर संभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लेट मी नाउ अपडेट यू ऑन द फ्लाइट स्टेटस as on date. As far as the flight status and airspace in the region is concerned, since the beginning on February 25th, 28th, around 172,000 passengers have returned from the region to India, and the air connectivity is steadily improving with addition of more flights to different airports in India. Flights have been operating from Oman, Saudi Arabia, UAE and Qatar. For Indians in Bahrain, Kuwait and Iraq, from where direct flights are not operating, we are assisting the Indian nationals in terms of visa extensions, transit visas for onward journey to India via Saudi Arabia. Update on the incident in Oman yesterday. Yesterday, in an attack in Sohar city in Oman, unfortunately 2 Indian nationals lost their lives and 10 Indian nationals were injured, none of whom are reported to be seriously injured. Our mission has been on the ground and is rendering all assistance, as is in constant touch with the concerned Omani authorities, the local companies, hospitals and families of the affected Indians. The embassy is also coordinating to facilitate early return of the mortal remains of the 2 deceased Indian nationals to India. Then update on the Safe Sea Vishnu incident which happened in Basra in Iraq. Our mission team has been on the ground there for early return of the 15 crew members of Safe Sea Vishnu who were safely evacuated and are currently residing in a hotel in Basra. They are also working with the concerned authorities for early return of the mortal remains to India of the Indian national who was unfortunately lost his life. Indian nationals have lost their lives in these incidents recently, and we have 5 Indians who lost their life and 1 who is missing in the earlier incidents. Our missions in Oman, Iraq and UAE remain in touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for early repatriation of mortal remains of the deceased after completing requisite formalities. Let me assure you that for our missions post and the Ministry of External Affairs, rendering all support to the seafarers in the region is of utmost priority, and we are closely coordinating with the Ministry of Shipping, Ports and Waterways in this regard. Thank you. अंत में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सेंथिल राजन से अनुरोध करूंगी कि वे पब्लिक इंफॉर्मेशन से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दें। Thank you, ma'am. Namaskar. It's being noticed that a lot of people are trying to circulate fake videos, AI-generated videos, fake misinformation, and also basically data which is not correct on the social media. So we appeal to all people to be very cautious of this sort of handles, and also trust in all the official media handles and authentic and credible sources of social media handles. So this is very important in the current situation, and this is an appeal from our side. सभी नागरिक अपना सोशल मीडिया हैंडल्स में आप ध्यान से ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो करें, और कोशिश किया जा रहा है कुछ हैंडल्स से मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और एआई जनरेटेड वीडियोस को देखकर पब्लिक को गुमराह करने के लिए,
इसको आप लोग इससे बहुत बिवेयर रहें और इससे बच के रहें। दूसरे, जैसे मैडम ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बताया, आप लोग अपना सिलेंडर का बुकिंग आपका डिलीवरी दिन के 25 दिन के बाद आप बुकिंग करें। उसमें आपको बुकिंग का ऑप्शन है और सभी ऑनलाइन टूल्स और डिजिटल टूल्स में आपको बुकिंग करना है। आपको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने का जरूरत नहीं है। आपको बुकिंग ऑनलाइन और डिफरेंट मेथड जैसे IVRS है, SMS है, ये सब के थ्रू आप अपना बुकिंग कर सकते हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने का जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है, जब इस सभी स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी केंद्र सरकार ने सभी से बात भी किया है और सब लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमिटीज बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो लोग स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से साथ कोऑर्डिनेशन करके मीटिंग करके वो लोग रेगुलरली इसके स्टेप्स भी ले रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के बारे में काफी एक्शन स्टेट लेवल पे हो रही है। आप लोग मीडिया की तरफ से उसके बारे में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस कर सकते हैं। उस नंबर पे आप कॉल करके आप एड्रेस करेंगे। हमारा सिर्फ अगर आप ये देखे जाए, ये पैनिक बुकिंग को हम जिस तरह जल्दी इसको इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं, उससे बेटर हमारा सिचुएशन डिस्ट्रीब्यूशन का इंप्रूव होगा। इट इज अ रिक्वेस्ट दैट people do not engage in panic booking. Please book your cylinders after the 25th day from the day of 25th day of delivery. You will get your cylinders in the urban areas, and in the rural areas it is after 45 days. Thank you. Thank you, Senthil. We will now take few questions from the media. 39. सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। इधर मैम, दिस साइड। मेरा सवाल है कि LPG सप्लाई को लेकर खासतौर से जो कमर्शियल सप्लाई है, आप कह रहे हैं कि स्थिति नॉर्मल है, घरेलू सप्लाई के लिए तो नॉर्मल है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो लोग रेस्टोरेंट मालिक हैं या जो लोग तमाम ऐसे लोग हैं जो कमर्शियल सिलेंडर का यूज करते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? कब तक हालात नॉर्मल हो पाएंगे, या वो लंबी तैयारी करके रखें जब तक ये मिडिल ईस्ट में हालात चल रहे हैं तब तक उनको नॉर्मल सप्लाई नहीं मिल पाएगी? तो इसको लेकर क्या जानकारी है? दूसरा, पोर्ट मिनिस्ट्री से मेरा सवाल है कि जो आप बता रहे हैं कि गल्फ रीजन में जो हमारे 24 के लगभग शिप हैं, कार्गो शिप हैं, वो क्या सभी क्रूड ऑयल वाले हैं, LPG वाले शिप हैं या अलग से है? और एक सवाल विदेश मंत्रालय से कि सैंक्शन हटने के बाद जो रूस से तेल खरीदने के लिए कहा गया कि US की तरफ से कि बाकी देश खरीद सकते हैं, भारत भी खरीद सकता है, तो क्या रूस से अतिरिक्त सप्लाई शुरू हो गई है भारत को आना? थैंक यू। पहले 2-3 क्वेश्चंस लेते फिर एक साथ रिप्लाई करते हैं, देंगे। 189। हाँ, my question is to Sri Randhir Jaiswal. Sir, BRICS is also part of, Iran is also part of BRICS. So is there any statement from BRICS jointly on this issue? And my second question is that, from the Gulf region, we have fertilizer inputs also. So what is the situation of fertilizer input from that area? Sir, एक और 123। सर, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। रणधीर सर से हमारा सवाल है कि अभी आने वाले वक्त में और भी कुछ जहाजों को अनुमति मिली है कि वो भारत की तरफ आ सके, जो कि फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, और उसका आने वाले वक्त में जो भारत में LPG की आपूर्ति है, ये सवाल हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय से है कि आने वाले वक्त में जो जहाज आएंगे और LPG को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं, उसमें कितनी राहत मिलेगी, ये 2 जहाज के आने से और आने वाले वक्त में दूसरे जहाजों के आने से? So the question from this side was the second question which you asked. जो आप कह रहे थे कि जो 22 भारतीय फ्लैग के वेसल्स हैं जो फारस की खाड़ी में हैं, पर्शियन गल्फ में हैं, उनमें कार्गो का नेचर क्या है? आर दीज क्रूड और व्हाट? आई गिव यू ब्रेकअप, आई गिव द नंबर्स। जो 22 है उनका ब्रेकअप इस प्रकार है। 6 हैं जो LPG के हैं,
एक LNG है, टैंकर, LNG टैंकर, शिप का नाम होता है LPG कैरियर, LNG कैरियर, दिस इज LNG कैरियर. 4 are crude oil tankers. 1 is chemical and products tanker. 3 are container ships. 2 are bulk carriers. 1 is a dredger. एक empty ballast पे है और 3 dry dock में है. Empty ballast means there is no cargo. They are not actually carrying cargo, but they are there. Dry dock means they are under repair or some maintenance work. So this is a breakup of 22. Correct. These are loaded. They are loaded. So the numbers I gave are loaded. 1 empty ballast or 1 empty, let's say empty, and 3 dry docks. Dry docks under repair and maintenance. Regular periodic maintenance होता है. So they're there. So I'll repeat. LPG 6, LNG 1, crude oil tankers 4, chemical and products tanker 1, container ship 3, bulk carriers 2, dredger 1. रिगार्डिंग LPG, इसके बारे में मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन साझा करना चाहूँगी कि पिछले 10 साल में हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का नंबर लगभग 14 करोड़ से 33 करोड़ हो गया है और हम अपनी ज़रूरत का लगभग 60% LPG इंपोर्ट करते हैं. वॉर लाइक सिचुएशन है, सो उसमें भारत सरकार की प्रायोरिटी यही रही है कि वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करे. सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करते हुए डोमेस्टिक LPG की सप्लाई को इंश्योर किया जाए. इस स्थिति में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम गल्फ के अलावा कहीं और से LPG खरीदें, जो सब प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अलावा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन रैंप अप करें, वो हमने किया है. दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 31%. इसके अलावा हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ वृद्धि और होगी. हमारी एक JV रिफाइनरी है जिसने प्रॉमिस किया है कि दे विल ऐड सम मोर वॉल्यूम्स टू द LPG डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन. इस स्थिति में कमर्शियल कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि उनको भी कुछ LPG सप्लाई शुरू की जाए और जो कमर्शियल LPG अवेलेबल थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई और उन्हें ये कहा गया है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करें कि किसको पहले कितना देना चाहिए, एंड दे आर डूइंग इट. एंड एज ऑन टुडे लगभग 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स ने कमर्शियल सिलेंडर का सप्लाई स्टार्ट किया है. परंतु इस स्थिति के अंदर वी ऑल्सो वांट टू ईज द प्रेशर ऑन LPG और इसीलिए हमारी ये प्रार्थना रही है कि जहां पर भी कमर्शियल यूजर्स LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, जहां पर पॉसिबिलिटी है, दे शुड डू दैट. और ये सिर्फ उन कमर्शियल के लिए नहीं है, ये LPG यूजर्स के लिए भी है. हमारे पास लगभग 60 लाख ऐसे LPG कंज्यूमर्स हैं जिनके पास में PNG कनेक्टिविटी है और वो बहुत आराम से LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं. थैंक यू. क्या चीज? लेट मी चेक. जस्ट let me come in and then she can respond to the remainder of your it is 29.
सी देखिए, जो 25 और 45 दिन किया गया है, ये कोई इट इज़ नॉट विदाउट थिंकिंग. सो जो रूरल और अर्बन एरिया का कंजम्पशन पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है. जहां तक डोमेस्टिक जो कमर्शियल सिलेंडर्स की बात है, आई मीन आई विल ऐड टू व्हाट आई सेड जस्ट नाउ. हमारे सामने वो स्थिति थी जहां पर हमको डाइवर्जन रोकना था. इसीलिए एलपीजी जो कमर्शियल सप्लाईज थी उसको रोका गया और फिर उसको धीरे से खोला गया. कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स कैन शिफ्ट टू पीएनजी बिकॉज I mean, the CGD networks are existing in major cities. In fact, in the entire country, the CGD areas have been allocated by PNGRB. बड़े क्षेत्रों जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर तो एग्जिस्टिंग है. हमारे पास लगभग 1.5 करोड़ इस वक्त PNG कंज्यूमर्स हैं. मेजर ट्रंक लाइन्स हैव बीन पुट एंड सो it is not very difficult to get the PNG connection. That is also the same. Trunk line जहां पर आई है उसके बाद तो it is the distribution network. I think it should not take more than few days. Excuse me, let me answer the questions that have been put forth first. Please, please. Akhilesh ji, coming to your question, some members of the BRICS, as you know, are directly involved in the current situation in West Asia. This has obviously impacted forging a consensus on a common BRICS position on the ongoing conflict. As chair of BRICS, we have been facilitating discussions among BRICS members through Sherpa channel. The last meeting of the Sherpas of the BRICS took place virtually on 12th March. We are trying our best to develop a position, but because of differing positions, it is difficult. It has been difficult. In addition, as you know, our leadership also is in talks. They are engaged with member countries of the BRICS, and we will continue to remain engaged with BRICS member countries so that we can arrive at a position on BRICS on this particular conflict. Now, coming to your question regarding fertilizer, again, this is something that has connections with the Gulf region. Let me tell you that the Department of Fertilizers has issued a few days back a detailed note on India's fertilizer availability situation. PIB के माध्यम से ये प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है और मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा. Please, I would like to refer you to these press releases. What I can tell you, though, is that India has more than adequate stocks of fertilizers at this point in time, especially for Kharif 2026. Our stocks of urea are more than what they were at this point last year. Our DAP stocks are double of what they were last year. Our NPK stock position is similarly much higher today in comparison to last year. Insofar as our domestic production of urea is concerned, our current production will be more than our nominal consumption, especially since the Rabi season is coming to an end. In addition, we had taken care to advance the scheduled annual maintenance of some of our plants, which means that we are able to maximize production with available gas. The Department of Fertilizers had also put out global tenders well in advance, in time, in anticipation of the current situation. These have received a very good response, and we expect to receive the bulk of the quantities ordered from a variety of sources by end March. Department of Fertilizers has also decided to procure spot gas on a competitive basis, and the first phase purchase will be by Tuesday. That is 2 days from now.
All our partners have assured us, all our international partners, of uninterrupted supplies, and we hope to attain and maintain comfortable stocks of fertilizers by the time Kharif demand peaks by 15th of May. The Department of Fertilizers is tracking global and domestic patterns carefully, taking the requisite steps. Observers and commentators would do well to look at the factual situation and not induce panic through uninformed speculation. कहने का मतलब ये है कि घबराहट की कोई बात नहीं है और इसमें कोई अनुमान करने की वाली बात नहीं है. We had a question from Neeraj. Okay. So, नीरज, जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि कई एक सारे हमारे जहाज खाड़ी के क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि करीब 22 जहाज, दो तो भारत की तरफ चल चुका है, 22 वहां जहाज हैं. हमारे तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि जो भी वहां सरकारें हैं उनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे ताकि जो हमारे जहाज है वहां पर उनका पारगमन हो सके, सुरक्षित रूप से पारगमन हो सके, ताकि हमारी अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूती मिले, उसको बल मिले. मैं एक बार ये भी दोहराना चाहूंगा कि हमारे लिए हमारे उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे. एक सवाल ब्रह्मप्रकाश ने पूछा था. देखिए, जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है, दुनिया के कई एक देशों से हम तेल खरीदते हैं और जिस भी देश से हम तेल खरीदते हैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा जो है वो पब्लिक डोमेन में है, तो आप उसको देख सकते हैं. लेकिन रशिया से भी हम लोग तेल खरीद रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, फर्टिलाइजर की जहां तक सवाल है, देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस प्रकार की जो हम एलपीजी की बात कर रहे हैं कि वहां पर पैनिक हो रहा है, इसमें कोई उस प्रकार की घबराहट की बात नहीं है. किसानों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले कई एक महीनों के लिए हमारे पास पर्याप्त उर्वरक हमारे पास है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को, खाद्य सुरक्षा को एक पुख्ते ढंग से हम उसको आगे ले जाएंगे. Chairperson to conduct this session. 234. My question is for Sinha sir. Sinha sir, you spoke about the two cargoes. One is Shivalik and another is Nanda Devi. And you said that they are coming on 16th and 17th. Can you give details which is coming on which date and which port? मैंने बोला था क्रमानुसार, पहले शिवालिक 16 तारीख को और फिर नंदा देवी 17 तारीख को. ये एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ अराइवल है. One at Mundra and the other at, sorry? Which is coming at which port? First one is at Mundra, second at Kandla. Again, these are the expected ports of arrival as on today. So we will take one more question. आप लोगों ने पीएनजी को कि अगर कोई अप्लाई करता है तो फटाफट उनको कनेक्शन मिल जाए, कितना समय लगेगा, क्या उसके फीसेस में कोई डिस्चार्जेस मतलब डिस्काउंट्स भी हैं, मतलब इजी करने के लिए क्या विकल्प हैं? देखिए, जहां तक बुकिंग की बात है, 3 में से एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बुकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और वो भी इसलिए क्योंकि लोड कई गुना ज्यादा बढ़ गया था और मिस्ड कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे थे. बट नाउ दे हैव स्ट्रीमलाइन द सिस्टम, नंबर ऑफ कॉल्स एंड वॉट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी अपग्रेडेड वो कर लिया गया है और अब मुझे विश्वास है ऑनलाइन बुकिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी. हम भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं. दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सेंसिटाइजेशन के बारे में, तो उसमें प्रयास चालू है
और जैसे कि हमने आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाया और बताया भी, ऑलरेडी एक मीटिंग सारे सीजीडी ऑपरेटर्स, मेजर सिटीज एंड अर्बन एरियाज के जो सीजीडी ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ ऑलरेडी गेल एक मीटिंग कर चुका है और इसमें हम प्रयासरत हैं. Suggested promotion of shifting, or rather the option of consumers shifting from LPG to PNG. So it costs only rupees 6,000 for a PNG connection. The cost is recovered through savings in lower gas cost in 2 years, but how will the people switch at the initial stage? I mean, are we also looking at possibly some kind of a subsidy mechanism, to kind of push, kind of facilitate this shift and then later on phase it out, something like that? See, this is the policy matter and it will not be possible for me to comment on this at this stage. सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, रह गया था. रूस एक महत्वपूर्ण प्लेयर है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत भी हुई थी पश्चिम एशिया संकट पे. हमारा सवाल है कि क्या भारत भी रूस से पश्चिम एशिया के मसले पर बातचीत कर रहा है? So let me answer that question. You would have seen that in the last several days, our External Affairs Minister has been in touch with several of his counterparts across the world. He also had a conversation with the Russian Foreign Minister, Mr. Sergei Lavrov, on the ongoing conflict in West Asia. Similarly, there are several other high-level engagements that we have ongoing with Russia on this particular matter, and we remain in close touch with the Russian side on the ongoing conflict. जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे विदेश मंत्री दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है उनकी इस संघर्ष को लेके, और साथ ही साथ हमारे विदेश मंत्री की रूस के विदेश मंत्री श्रीमान सर्जी लावरोव से भी बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, खाड़ी में जो चल रहा है संघर्ष उस मुद्दे पर, और साथ ही साथ कई एक और हाई लेवल बातचीत हमारे और रशिया के बीच में इस मुद्दे पर चल रही है. और हम इस मुद्दे पर रूसी सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं इस जो घटनाक्रम चल रहा है खाड़ी के क्षेत्रों में उस मुद्दे पर. बहुत बहुत धन्यवाद. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.